السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ فیوچر سٹی درکار تمام سہولتوں سے آراستہ ہوگی، میٹرو ریل بھی دوڑے گی۔ کھیلوں کو عالمی معیار پر لانے ینگ انڈیا اسپورٹس یونیورسٹی کا قیام، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ ذات پات کی مردم شماری کے بعد ہی مجالس مقامی کے انتخابات، مردم شماری کے لیے 150 کروڑ روپے منظور، کام جلد شروع ہوگا، وزیر پونم پربھاکر کا اعلان۔ ریونت ریڈی نے کسانوں کو دھوکہ دیا ہے، مکمل قرض معافی نہیں کی، راہل گاندھی کو KTR کا مکتوب۔ اور چلتی بس کے 2 ٹائر نکل گئے، اچانک بس ایک طرف جھک گئی، گنجائش سے زائد مسافرین کے سبب حادثہ، کوئی جانی نقصان نہیں۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد شہر پر بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کرنے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شہر سے متصل ایک فیوچر سٹی بنانے کے منصوبے پر ماہرین کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس شہر کو مختلف سہولتوں سے آراستہ کرنے، آؤٹر رنگ روڈ سے ریجنل رنگ روڈ تک مربوط کرنے، فیوچر سٹی کے لیے میٹرو ریل اور دیگر امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست میں کھیل کود کی سرگرمیوں کو عالمی معیار کے مطابق ملک کی پہلی ینگ انڈیا اسپورٹس یونیورسٹی قائم کرنے کا اعلان کیا۔ مجوزہ فیوچر سٹی کی سڑکوں اور میٹرو ریل کو شمس آباد ایئرپورٹ سے مربوط کیا جائے گا
ओहदेदारों को एक रूट मैप तैयार करने की हिदायत दी गई। हुसूल आराजी से लेकर दीगर जरूरी मामलात की तकमील तक ओहदेदार एक दूसरे से राब्ते के जरिए कामों को अंजाम दें। उन्होंने जंगी खतूत पर कामों को आगे बढ़ाने को कहा। यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम पर उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा चौथा शहर यानी फ्यूचर सिटी खेल कूद की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने का एक मरकज़ होगा। इसके लिए एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन का भी यह मरकज़ होगा। अपने हालिया दौरे जनूबी कोरिया के मौके पर उन्होंने कोरिया की नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया था। कोरिया ने पेरिस ओलंपिक्स में 32 मेडल्स हासिल किए, जिनमें 16 मेडल इस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट्स के हैं। कोरिया की ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद की इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की टेक्निकल पार्टनर होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी के बाद ही मजालिस मकामी के इंतखाबात होंगे। रविंद्र भारती में सरकारी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत ने असम्बली में ज़ात पात की मरदमशुमारी की करारदाद पेश की है और हुकूमत ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए भी मंजूर करते हुए अहकामात जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ज़ात पात की मरदमशुमारी के काम का आगाज होगा। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी का काम किसी एजेंसी या फिर किसी डिपार्टमेंट के जरिए करवाए जाने पर गौर किया जा रहा है। हफ्ता 10 दिन में इस पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत के 2 लाख तासिंदों को सेफ्टी किट देने का भी फैसला किया गया है। రాజ్యాధికారం వైపు పోవాలనే ఎలక్షన్ తోటి ముందుకు సాగినాడు కాబట్టి ఈ చరిత్రలో నిలిచిపోయినాడు। ఇటువంటి జయంతి వర్ధంతి వేడుకలు లేదా విగ్రహాలు అటువంటి మహానీయులందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి। ఈ రోజు మనం వచ్చినమా, రవీంద్ర భారతి మీటింగ్ అటెండ్ అయినమా, దాని తర్వాత బయటికి వంగనే మర్చిపోయినమా అనుకుంటే బరాబర్గా చరిత్రహీనులేమో అవుతాం। దయచేసి ఆలోచన చేయండి। సర్వాయి పాపన చరిత్రలో ఏ విధంగా అయితే తన జీవితాశయమైన రాజ్యాధికారం వైపు అనేక రకాలుగా పోరాడి ఆనాడు సమాజంలో ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలను ఐక్యంగా చేసుకొని ముందుకు వెండో ఇవాళ మీరు మీ గ్రామాల్లో రాబోయే రాజకీయ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అన్ని వర్గాలను కలుపుకొని విజయకేతనం ఎగిరేసే దిశగా ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా ఈ సభ ఉండాలని కోరుకుంటా ఉన్నా। వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళు అనేక రకాలుగా అనేక అంశాలను కోరినారు। తప్పకుండా ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా మరొక్కసారి మీ అందరికీ వేదిక ద్వారా రికార్డెడ్గా విశ్వాసాన్ని కలగజేస్తా ఉన్నాం। తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలోనే ఈ ప్రభుత్వం 100%గా ట్యాంక్ బండ్ మీద సర్వాయి పాపన్న విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తుంది అనే మాట మనం చేస్తా ఉన్నాం। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस बार दिल्ली से खाली हाथ वापस लौट गए। राज्यसभा इंतखाबात के पेश नज़र आला कमान से मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आला के इस दौरे के बाद काबीना में तोसी और नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के ख़वी इम्कानात थे, लेकिन इस पर एक बार फिर पानी फिर गया। धार्मिक कैलेंडर के आषाढ़ महीने की वजह से गुज़िश्ता 1 महीने से कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। श्रावणम महीना आने से एक बार फिर नामजद ओहदे और काबीना में तोसी के इम्कानात पैदा हो गए। 64 के मिन जुमला 24 ओहदों पर तकर्रुरात होना बाकी हैं। वज़ीर आला के दौरे के बाद नामजद ओहदे और काबीना में तोसी के मामले में मजीद 1 माह ताख़ीर होने का इम्कान है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने राहुल गांधी और कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत के कर्ज माफी से महरूम किसानों की तरफ से ये मकतूब लिख रहे हैं कि केटीआर ने वज़ीर आला ने झूठ जो बोला है और बुनियादी सतह पर जो हक़ाइक़ हैं क्या फ़र्क है, इस मकतूब में वाज़ेह किया गया है। तेलंगाना वरंगल डिक्लेरेशन के नाम पर किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन ये हुकूमत कई शराइत रखते हुए 40% किसानों के ही कर्ज माफ किए हैं।
केटीआर ने बताया कि लाखों किसान सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि वजीर आला धोखाबाज बातें करके किसानों को धोखा दे रहे हैं। अगर किसानों के कर्ज माफ नहीं किए गए तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस में कायदीन ही एतराफ कर रहे हैं कि कर्ज माफी मुकम्मल नहीं हुई है। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस के अवामी नुमाइंदे के बयानात जारी करते हुए सवाल किया कि किसको इस्तीफा देना चाहिए, किसको डूब मरना चाहिए, किसमें हया व शर्म नहीं है और कौन जाकर गन पार्क पर नाक रगड़ना चाहिए। पार्टी के रुकन कानूनसाज कौंसिल कोदंडराम गवर्नमेंट विप ए श्रीनिवास रेड्डी ने कबूल किया है कि कर्ज माफी मुकम्मल नहीं हुई है। हरीश राव ने कहा कि वो भी बात कर रहे हैं कि कर्ज माफी मुकम्मल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अपनी आंखें खोलें और मुकम्मल कर्ज माफी करते हुए किसानों के साथ इंसाफ करें। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि शहर में सरवाई पापन्ना गौड़ का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। रविंद्र भारती में सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की 374वीं यौम पैदाइश तकरीब सरकारी तौर पर मुनक्किद की गई। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पापन्ना गौड़ का मुजस्समा शहर में नस्ब किया जाएगा। इसकी जिम्मेदार वजीर पूनम प्रभाकर को दी गई है। उन्होंने कहा कि मुजस्समे के लिए जगह की निशानदही और मनसूबाबंदी करके हुकूमत को देंगे तो हुकूमत बिल्कुल तैयार है। पापन्ना गौड़ की तारीख से वाकिफ करवाने के लिए किले शाहपुर को सियाहती मुकाम पर तरक्की देने के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए रकम जारी की जाएंगी। हुकूमत इस रकम को नए बजट में मख्तस करेगी। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इससे पहले सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया गया। ఈ రోజు 4,70,00,000 రూపాయల్ని ఈ టూరిజం ఈ కేంద్రాలను అభివృద్ధి పరచడానికి ఈరోజు జీవో కూడా ఇష్యూ చేయటం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమాన్ని 10 మందికి తెలియటం కోసం ప్రభుత్వంలో బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పదవిలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు దీన్ని బాధ్యతగా తీసుకొని టూరిజం శాఖ వారితో ఇతర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అధికారులు అందరితో మాట్లాడి ఈ జీవోని ఇప్పించి సర్వాయి పాపన్న గారి జీవితం ప్రజలందరికీ ఆదర్శంగా ఉండటం కోసం వారు చేసిన కృషిని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా వారిని అభినందిస్తా ఉన్నాను। అట్లాగే మిత్రులారా, సరే పాపన్న గారి జీవిత చరిత్రకు సంబంధించి చిన్న పుస్తకాన్ని కూడా पॉकेट पुस्तकाన్ని కూడా మిత్రులు ప్రచురించారు। वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने कहा कि कर्ज माफी के मामले में किसान परेशान न हो। महकमे की तरफ से जारी करते हुए एक प्रेस नोट में बताया गया है कि हर मुस्तहिक किसान के कर्ज को माफ किया जाएगा। प्रेस नोट के मुताबिक 2 लाख रुपए के कर्ज की रकम वाले मुस्तहिक किसानों के कर्ज हुकूमत 1 माह में माफ करेगी। अब तक करीब 22 लाख किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए हैं। कर्ज माफी का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, यह अभी जारी है। हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक आखिरी मरहले में 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी की जाएगी। महकमे ज़राअत ने बताया कि बैंक में टेक्निकल वजूहात की बिना पर 8,000 किसानों की रकम वापस आ गई है। 1 माह के अंदर किसानों से मिलने वाली दरखास्तों की महकमे ज़राअत एकसुई करेगा। मरकजी ममलिकती वजीर बी संजय ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के बयान पर कि बीआरएस बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएगी जवाबी रद्दअमल देते हुए कहा कि केसीआर और केटीआर के नाम भी लें तो अवाम उन्हें संसार करने की नौबत आ गई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस आउटडेटेड पार्टी है, इस पार्टी के अरकान असेंबली की जरूरत कांग्रेस को है। बदनवान पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की बीजेपी को जरूरत नहीं है। कर्ज माफी न होने पर किसान कांग्रेस का अलामती पुतला नजर आतिश करने के बावजूद तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बीआरएस और कांग्रेस दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। कर्ज माफी पर कांग्रेस हुकूमत नाकाम हो चुकी है। 64 लाख किसानों में 22 लाख किसानों के ही कर्ज माफ किए गए। अवाम को गुमराह करने के लिए
इंजमाम और इत्तेहाद के नाम पर अवाम के जहनों को मुंतशिर किया जा रहा है। राज्यसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए रियासत से कांग्रेस की आला कमान ने कांग्रेस के कौमी कायद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार मुकर्रर किया है। इतवार के दिन सिंघवी ने हैदराबाद पहुंचकर वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर उनकी अहलिया भी उनके हमराह मौजूद थीं। इसके अलावा उन्होंने नायब वजीर आला भट्टे विक्रमार्का, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर से मुलाकात की। इतवार की शाम 7 बजे नानकरामगुड़ा में वाक़े होटल शेटन में CLP इजलास मुनक्किद किया गया ताकि अरकान असम्बली से मुलाकात की जा सके। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर चिन्ना रेड्डी ने कहा कि सरकारी आराजियात को महफूज बनाने के लिए रिमोट रेफरेंसिंग तरीक़ेकार पर अमल किया जाएगा। इस सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में चिन्ना रेड्डी ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महकमे पुलिस और RTC के आराजियात को महफूज बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरहलेवारी तौर पर इंडोमेंट, वक्फ आराजियात और दीगर महकमेजात के आराजियात को महफूज बनाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए जियो रेफरेंसिंग मैपिंग के तरीक़ेकार पर अमल किया जाएगा। चिन्ना रेड्डी ने कहा कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद के हदूद की तफसीलात के लिए तेलंगाना हुकूमत सेंसिंग सेंटर का इस्तेमाल करेगी। शहर में गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की कार्रवाई जारी है। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के गंडीपेट मंडल खानापुर देहात में गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ओहदेदारों ने इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर पुलिस का बंदोबस्त किया गया था। हालिया कुछ अरसे से नालों पर कब्जे और दीगर गैरमजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की कार्रवाई जारी है। दो रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तक़बालिया कमेटी का दूसरा इजलास इतवार को दारुस्सलाम में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मालियाती कमेटी के अरकान के नामों का सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मंजूरी से ऐलान किया गया। इस्तक़बालिया कमेटी के मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबिक़ रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी की सदारत में इजलास में दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मालियाती कमेटी में अरकान मुकर्रना अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन, माजिद हुसैन, रियाजुल हसन आफंदी के अलावा सदर इस्तक़बालिया जाफर हुसैन मेराज होंगे। दीगर अरकान में हतीम, नसीरुद्दीन, राशिद फराज, मोहसिन बलाला, अथर फारूकी, सिद्दीक अली और दीगर शामिल हैं। जलसेगाह व दीगर इंतजामात के लिए अलहदा कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। हर इतवार को इस्तक़बालिया कमेटी के इजलास मुनक्किद होंगे। जलसा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुल हिंद नातिया मुशायरे के लिए बैरूनी मुक़र्रिरीन और बैरूनी शुअरा के नामों की तौसीक़ के बाद ऐलान किया जाएगा। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि हिजरत के 1500 साल के पेश नज़र मजलिस की जानिब से एक साला तवील जश्न मनाया जाएगा, जिसमें साल भर मुनक्किद किए जाने वाले प्रोग्राम्स को क़तियत दी जाएगी। हर साल अपनी एक तारीख मुरतब करता है। हिंदुस्तान पे एक मुनफरिद जलसा होता है जो दारुस्सलाम में मुनक्किद होता है। बर्र सग़ीर के अजीम इज्तिमात में दारुस्सलाम के जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिमा भी शामिल है, जिसमें हिंदू पाक के अलावा हमारे रियासत के बाहर के शहर के मुख्तलिफ मकामात के मुमताज़ वाइज़ीन मुकर्रिरीन इसमें शिरकत की सादत हासिल करते हैं और इज़हार ख़याल की सादत मिलती है उन्हें। बहरहाल ये इंतज़ामात में मज़ीद क़तियत दी जाएगी। आइंदा इजलास में जलसेगाह के इंतज़ामात, उसके बैरूनी जलसेगाह, अंदरूनी जलसेगाह के इंतज़ामात की कमेटी का ऐलान किया जाएगा कि सरकार की सीरत तो दुनिया के किसी भी हिस्से में चलते रहेगी। लोग बयान करते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम 1400 साला जश्न के साथ इसका आगाज़ कर रहे हैं और 1500 साला जश्न पर इसका इख्तिताम करेंगे। 1500 साल हिजरत के सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील पा रहे हैं,
उसका भी हम जश्न मेयारी अंदाज से मनाएंगे और हमारे हर जश्न का इंतज़ाम आइंदा अब के मुकाबले में आइंदा से ज़्यादा बेहतर होगा और बड़े पैमाने पर ये इज्तिमा का इनेकाद होगा जिसमें जलसे सीरत तैयबा हो, जलसे खिरात होंगे, महफिल नात हो या किसी भी किस्म की महफिल हो जिसमें सरकार का जिक्र लाजमी होता है, वो महफिल का इनेकाद हम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ने ये एजाज़ दिया कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न मिलादत के जश्न हिजरी के तैयारी से महफिल की तैयारी का आगाज़ करने के लिए अल्लाह ने हम गुनाहगारों का इसका इंतखाब किया है। ये हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बाइस फ़ख्र है। निजामिया तिब्बी कॉलेज चार मीनार की मौजूदा इमारत की मरम्मत, कॉलेज और हॉस्पिटल्स की नई इमारत की तामीर के लिए बहुत जल्द संग बुनियाद रखा जाएगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत इस प्रोजेक्ट के लिए 52 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए हैं और टेंडर्स की तकमील कर ली गई है। प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट और इंजीनियर्स ने दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मजलिस से मुलाकात की और उन्हें तामीराती कामों की तफसीलात से वाकिफ कराया। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला के अलावा हल्के चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली भी मौजूद थे। अकबरुद्दीन अवैसी ने इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ इस्तिफ़सारात किए और कंसल्टेंट को मुफीद मशवरे दिए। कायद मजलिस को बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरा रकम से ज़ायद फंड्स दरकार होंगे। कायद मजलिस ने कहा कि फ़ंड की फ़िक्र न करें, मरम्मती काम और नए तामीरात आला मियारी होने चाहिए। इसके लिए मजीद फंड की ज़रूरत पड़ने पर वो हुकूमत से नुमाइंदगी करके दरकार फंड्स की इजराई को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने तिब्ब यूनानी के इस तारीखी दवाखाने की अजमत रफ्ता को बहाल करने असम्बली के हालिया इजलास में नुमाइंदगी करते हुए फंड्स मंजूर करवाए थे। रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के लिए अवाम में जोश खरोश देखा गया है। खास तौर से हैदराबाद से अजला जाने वालों का रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर बड़ा हुजूम है। रक्षाबंधन को राखी पूनम से भी मौसूम किया जाता है, जिसमें भाई को राखी बांधकर एक बहन अपने आप को महफूज समझती है, जबकि एक भाई अपनी बहन की किसी भी सूरत में हिफाजत करता है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर राखी बड़ी तादाद में फरोख्त हुई हैं, जो बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन की बनाई जाती हैं। चीनी साख्ता मुख्तलिफ डिज़ाइन की राखियां भी इस वक्त बाजार में दस्तयाब हैं। तेलंगाना के जगतियाल जिले में आरटीसी बस का बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल डिपो की आरटीसी बस के 2 टायर जगतियाल के मुरापल्ली गांव के पास अचानक बस से निकल गए, जिसके नतीजे में बस एक तरफ झुक गई। चलती बस के टायर निकल जाने से बस में अफरा तफरी फैल गई। बताया जाता है कि 50 अफराद की गुंजाइश वाली बस में 100 से ज़ायद अफराद सफ़र करने की वजह से यह हादसा पेश आया। ताहम किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। अगर बस उलट जाती तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था और जानी नुकसान होता। और नजरें आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड।
Musa Enclave, SA Colony, Toli Chowki, MSN Diamond Hills Colony, Toli Chowki, Azal Residency, SA Colony, Toli Chowki, Serene Heights, Golden Sand Colony, Toli Chowki, Darul Aman, Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। फ्यूचर सिटी और दरकार तमाम सहूलतों से आरास्ता होगी। मेट्रो रेल भी दौड़ेगी। खेलों को आलमी मियार पर लाने यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम। वज़ीर आला का जायजा इजलास। ज़ात पात की मरदमशुमारी के बाद ही मजालिस मकामी के इंतखाबात। मरदमशुमारी के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर। काम जल्द शुरू होगा। वजीर पूनम प्रभाकर का ऐलान। रेवंत रेड्डी ने किसानों को धोखा दिया है। मुकम्मल कर्ज माफी नहीं की। राहुल गांधी को KTR का मकतूब। और चलती बस के 2 टायर निकल गए। अचानक बस एक तरफ झुक गई। गुंजाइश से जायद मुसाफिरीन के सबब हादसा। कोई जानी नुकसान नहीं। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।